ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے. اللہ برکت. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیا؟ ماشاءاللہ نام بھی فراست علی. اچھا اور پھر نیتا جی ہیں. نیتا جی مگر نیتا جی ٹانگیں سمیٹ لو یار. دیکھو تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ ٹانگیں سمیٹ لو. ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر. چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے, اچھے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں, ایڈریس لکھا دوں, لکھنا چاہ رہے ہو؟ چلو گے نا؟ 100% دعا قبول. وہ جگہ کون سی ہے؟ بہنیں بھی جا سکتی ہیں. وہ جگہ کوئی اور نہیں, وہ بارگاہ تمہاری ماں باپ کی بارگاہ ہے. اگر یہاں ان کی خدمت کر لو, ماں باپ راضی ہو جائے. اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آقا کہتے ہیں, یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میں نے دعوے میں دلیل میں حدیث پڑھی, اب کون رد کر دے گا؟ تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایہ صاحب کی امروہہ میں, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی, تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی. ایک ذات ایسی بھی ہے, نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے. تو نبی کی دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ دلیل مل گئی. ماں باپ کو ستا رہا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا, کہتا چپ کے رہیے بیٹھ رہیے بڈھا. اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں مولا جو نبی کا غلام ہے, کھڑے ہو گئے نام لارے والے نعرے تکبیر نعرے رسالت, پھاڑ لیے گریبان کے بٹن اور اماں کو جا کے آنکھیں دکھا رہا, جیسے ابھی لگا رہے تھے, سمجھے, اماں کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے. پیارے اپنے اوپر ذرا غور کرو, اپنے اوپر سنو. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا, توجہ رکھنا, توجہ نکل نہ جائے, بات بڑی کام کی ہو رہی ہے اب. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا آج تک؟ بولو دیکھا؟ نہیں دیکھا. بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو اور یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو؟ دیکھا؟ میں دکھاتا ہوں آج تمہیں. 40% لوگ ہو, بہت خیالوں میں ہیں ہم, ہیں کہاں؟ اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے. پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف. بے شک بے شک صحیح بات. جب دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی. حضرت صحیح بتا رہا ہوں, علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ, کم سے کم 40% لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے. زیادہ ہی ہیں. آپ کہیں گے یار سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, حضرت کیسی بات, قرآن کی آیت تو سنو. کون ہے وہ, توجہ رکھنا, کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ
घर में जाकर के कुरान पढ़ लेना, तर्जमा देख लेना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा करता हूँ, अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा करो। ये कुरान क्या रहा, आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में ही निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना, वो भी रमजान में। लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो। समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे हो, उसे आगे बढ़ा दो। मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बेशक। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई। कितनी औरतें? बोलो बोलो। 2 औरतें आई, अपने मसाइल। नबी ने कहा सुनो, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? वो तो चक्कर में कहने लगी आका नहीं, कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों चुप। कह रही हैं आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हम खा के नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आका मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़े, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया अच्छा, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो। जैसे ही दोनों औरतें उधर गईं और जब हल्क में उंगली डाल के कै की तो गोश्त की बोटियां, लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम है रब्बे दुल जलाल की आका, हमने आज गोश्त ही नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला परेशान। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा, हाथ उठा कर तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करें इंशाअल्लाह। बोलो रख लो, जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं। एक जबान, दूसरी शर्मगाह। तुमने ऐसा कोई शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं कैसे बताऊं, चलो थोड़ा मैं हल्के लफ्जों में बोलूंगा, उसे पूरा समझ लोगे। कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी मां से गलत हरकत करता हो, कितना खराब होगा वो बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ गए ना, पूरी बात समझ गए? कितना
नीच इंसान होगा, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा जो बेटा अपनी माँ के साथ जिना करे, अपनी माँ के साथ मुंह काला करे। अब मैं मुंह काला करूं, समझ लेना, पूरी बात समझ लेना, ठीक है? तुमने देखा आज तक ऐसा? प्यारे मैं हदीस बताऊंगा, सही बता रहा हूं, मुंह को कलेज आ जाएगा। मैं इस तकरीर को 2 घंटे में भी फैला सकता हूं, मगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात जल्दी 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 ला करके ना, मैं तुम्हें ज्यादा बातें बताना चाहता हूं। पता नहीं किसी के दिल पे अगर बात असर कर जाए तो कामयाब हो जाए, मगर शर्त यह है मेरी बातें तुम अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे। पहुंचाओगे? बोलो। खुद भी अमल करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कौन शख्स ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत नजर रखता है, मुंह काला करता है? सुनो, सूद, क्या बोलो? सूद, लेना देना खाना खिलाना। सूद लेने वाला और देने वाला एक रिश्वत। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद जानते हैं कितना कारोबार चला रहे हैं लोग, कितने लोग ऐसे हैं। अगर कोई तुम्हारा दोस्त ऐसा हो, ये बात हदीस के जरिए से पहुंचा देना। अगर कोई सूद का कारोबार करता है, सूद का रुपये खाता, पैसा खाता, सूद लेता देता, तो सुन ले, सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के दर्जे 70 है, और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया है। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह, 70 दर्जात। मगर सुनो फैजगंज के गयूर मुसलमानों, सुनो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो उसको ये बात बता देना, जो 70 दर्जे हैं, उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। कभी सोचा इस बात को? लोग देखते ही नहीं हराम क्या है, हलाल क्या है, कब तक खाते रहेंगे? बेटी, छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसकी चाय पत्ती आ रही है, दूध आ रहा है, वो भी सट्टों के पैसे से, जुए के पैसे से, हराम के पैसे। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती, कहां डालोगे इसे? कभी जिंदगी में देखा हजरत? ये पुराने लोग हैं, इनसे पूछो, इनके खेतों पे बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी पूरी निकल जाती थी, पूरी, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने काट ली। इतनी पतली मेंढ बची, अब भी इसका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, सुबह के जाकर फावड़ा टेढ़ा मार रहा। कहां लेके जाएगा? कहां लेके जाएगा? ये सारे चक्रोट खत्म, नहरें नरुए बना दिए, कहां लेकर के जाएगा? सगे भाई की अगर दीवार टेढ़ी है, दिल में इतनी जगह नहीं है, वो कह रहा भाई मैं सीधी कर लूं, तो कह रहा मार दूंगा, मर जाऊंगा। वो आंगन में खड़े को उसकी मां को गाली दे रहा, और वो आंगन में खड़े को उसकी मां को, उसकी मां अलग अलग है क्या? क्या दिमाग पाया? जरा तवज्जो रखो, गौर करो। आज के बाद सूद कोई नहीं, रिश्वत कोई नहीं, तवज्जो आ रही है? हराम का रुपया और पैसा कोई नहीं, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। रोजाना गोश्त नहीं खाओगे, चटनी से खाओ, तुम्हारे बच्चे फख्र करेंगे, हमारा बाप गरीब था मगर खून पसीने की कमाई खिलाता था। आखिरी बात बता दूं, टाइम ज्यादा ले लिया, इजाजत है आखिरी बात के लिए? कितने लोग ऐसे हैं जो शराब पीते? शराब वाली बात और बता दूं, खत्म कर रहा हूं, जबकि ये पूरा एक एक मौजू अलग अलग है, पूरा मौजू अलग अलग है, मगर सुनो, शराब, एक बात बताऊं, इस कपड़े पर जैसे पेशाब लगे, पेशाब 1 दिरहम से अगर ज्यादा हो तो कपड़ा नापाक, ऐसे ही बाज फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब उस कपड़े पर लग जाए 1 दिरहम से ज्यादा हो तो जैसे पेशाब से नापाक होता है, ऐसे ही शराब से भी नापाक। बाज फुक़हा कहते हैं, अब बताओ कहीं पे अल्लाह और रसूल का नाम लिखा हो, उस पे पेशाब डालेगा कोई? नापाकी में शराब भी उसी के बराबर है। कोई ऐसा है किसी का दोस्त जो पेशाब पिए? पेशाब क्यों नहीं पी रहा? उसमें कोई इतनी बदबू थोड़ी है शराब से, इसलिए नापाक है, यही तो है ना, नहीं पी रहा। कैसा मुसलमान है यार वो,
जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम लेता है उसी मुंह से शराब पीता है। हजरत अली का नाम लेके बहुत उछल रहे थे। हजरत अली ही के हवाले से एक बात बता दूं और ख़त्म कर दूं। बहुत कूद रहे थे। कुरान की एक आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है, छोटा सा करके बताऊंगा। हजरत अली फरमाते हैं, तवज्जो रखना, जो शराब पीते हैं, किसी का दोस्त अगर शराब पीता छोड़ा देना, ये बातें बता देना। हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दो, समझ में आ गई, अब वो तालाब का पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पर घास जम आए, घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर लें, खा लें, पेट भर लें, तो अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उन बकरियों का, तुम एकदम गटर 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 पूछो तो कह रहे बियर है, बियर बॉडी बना रहा, जिम जा, वो बॉडी किस काम की जो हराम से बने, हराम से। वो बॉडी किस काम की जो हराम चीजों से बने, वो बॉडी किस काम की जो इबादत में न लगे, माँ बाप की खिदमत में न लगे, दीन इस्लाम में न लगे। ऐसी बॉडी किसी काम की नहीं सिवाय कब्र के सांप और बिच्छुओं के। सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। याद रखना, आज के बाद शराब को भी हाथ मत लगाना। मैंने बात काफी आगे बढ़ा दी है, याद बात कई चीजें ऐसी आ गई हैं। अल्लाह अल्लाह प्यारे, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, इस्लामी रिश्ते के सब मेरे भाई हो, समझ में आ रही। और बच्चों, तुम्हें बड़ी मेहनत से तुम्हारे उस्तादों ने पढ़ाया, मेरे लाल इतना ज़रूर ख्याल रखना, ज़ात पे दाग आने मत देना, धब्बा आने मत देना। हमारे हाथों से तुम्हारे पगड़ी बंधी है, साफा बंधा है, तुम्हारे सीने में कुरान आया है, ये सारे उलमा मौजूद हैं। आज से ऐसे हो जाओ, अगर तुम खाओ पियो उठो बैठो हर हर अदा बोले नबी नबी। और तुम भी सुनो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, दिल से हसद कीना बगावत इधर उधर करना जलन, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो। तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाना, अगर तुम किसी के काम में नहीं आ सकते तो उसका काम भी मत बिगाड़ना। इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में मेल मोहब्बत प्यार। नौजवानों, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, इसको अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी अच्छी नातें सुनो, कुरान सुनो, इसी से नमाज सीखो, सारी बातें इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अपनी बहनों से कह के जाऊंगा, तुम मोबाइल को हाथ मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। तुम तो सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ो, बड़े पीर साहब की माँ की ज़िंदगी को पढ़ो, हसन और हुसैन की बहनों की ज़िंदगी को पढ़ो, गरीब नवाज की बेटी की ज़िंदगी को पढ़ो। तुम तो नेक औरतों की ज़िंदगी को पढ़ो। तुम्हें वो बम्बई की जो औरतें फिल्में बना रही हैं, तुमने उनकी तरह बाल कर लिए, कपड़े कर लिए, ये मुसलमान की बेटी का तरीक़ा। तुम तो सैयदा फातिमा का तरीक़ा अपनाओ, तुम तो सैयदा ज़ैनब का तरीक़ा अपनाओ, तुम तो अल्लाह वाले नेक औरतों का तरीक़ा उनका अपनाओ। और आज के बाद तुम भी किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, बुराई मत करना, इधर से उधर मत करना। बड़ों की इज्जत करो, छोटों से शफकत करो, नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पाक साफ रहो, खड़मुत्तू मत बनना, खड़े होकर के मत मूतना, समझ में आ रही, ना पाक मत रहना, पाक साफ रहो। इमामों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो, इधर से आओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। तुम्हें देख करके लोग कहे वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। मेरे साथ में सब लोग तौबा करो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह